ہم سے جڑنے کے لیے YouTube پر فرید ایجنسی YouTube چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، اے میرے آقا آپ کی رحمت سے حصہ کس کو نہیں ملا ہے؟ بچیوں کو آپ کی رحمت سے حصہ ملا، بیواؤں کو آپ کی رحمت سے حصہ ملا، بوڑھوں کو آپ کی رحمت سے حصہ ملا، بوڑھوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، معاشرے کے ہر فرد کو، اور بلکہ روئے زمین پر رہنے والے ہر فرد کو آپ کی رحمت سے حصہ ملا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، واہ واہ واہ، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، اور شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ کی انجمن بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو اللہ میری خطا معاف فرما دے گا؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، اگر اسلام کے دامن میں آ جاؤ تو اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اتنا سننا تھا، نوجوان مسکرا پڑا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو خطائیں معاف کر دی جائیں گی؟ ہاں، اگر اسلام قبول کر لو تو تمہاری خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ نوجوان نے عرض کرنا شروع کیا یا رسول اللہ اے میرے آقا اگر میں اسلام قبول کر لوں تو خطائیں معاف ہوں گی؟ ہاں، الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام ما سبق کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تم دامن اسلام میں داخلہ تو لو، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یا رسول اللہ میں بہت پاپی ہوں، بہت گنہگار ہوں، بہت سیاہکار ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو کہیں اور نہیں جاتے تھے، دربار رسالت میں حاضری دیا کرتے تھے، اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اس تاجور کی ہے۔ صحابہ جانتے تھے کہ بارگاہ مصطفی سے مغفرت کا پروانہ ملے گا، رحمت کا پروانہ ملے گا نبی کی بارگاہ سے، نجات کا پروانہ ملے گا نبی کی بارگاہ سے، مغفرت کا پروانہ ملے گا نبی کی بارگاہ سے، بیماریوں سے شفا ملے گی تو نبی کی بارگاہ سے۔ آج یہی عقیدہ تو ہم سنیوں کا ہے، آج یہی عقیدہ تو ہم اہل سنت و جماعت کا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دافع البلا ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں، آفات و بلیات کا خاتمہ فرمانے والے ہیں۔ نبی کی شان تو یہ ہے کہ میرے آقا کا ہاتھ اگر لگ جائے تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست ناز میں اللہ نے وہ اعجاز رکھا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دست ناز جس طرف اٹھ جاتا ہے، رب تبارک و تعالی اپنے محبوب کے دست ناز کی برکت اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہاتھ جی سمت اٹھا غنی کر دیا، واہ واہ واہ، ہاتھ جی سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔
सलाम नबी की बारगाह में वो सहाबी आ गए हैं, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया है। उन्होंने अर्ज करना शुरू किया, या रसूलल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ, कौन सा गुनाह तुमने किया है? तब तक वो अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह मैंने इन पापी हाथों से, मैंने इन गुनहगार हाथों से 1 2 नहीं 10 5 नहीं 15 20 नहीं, या रसूलल्लाह मैंने 70 बच्चियों को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ा है, जिंदा जमीन के अंदर मैंने दफन कर दिया है, अल्लाह इस खता को भी माफ फरमा देगा। तब तक तायर सिदरा जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिरी देते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह आप इस नौजवान को बशारत दे दीजिए कि अगर इसने दामने इस्लाम में दाखिला ले लिया तो अल्लाह इसके इस खता को भी माफ फरमा देगा, रब्बे कदीर इसकी खता को माफ फरमा देगा। मेरे आका मुस्कुरा करके फरमाते हैं, नौजवान अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो अल्लाह तुम्हारी खता को माफ फरमा देगा। नौजवान ने अर्ज करना शुरू किया, या रसूल अल्लाह मैं वाकया बयान कर दूं? आका फरमाते हैं बयान करो। अर्ज करना शुरू किया, या रसूल अल्लाह मैं अपने घर से बाहर निकला, अपनी बीवी के पेट में मैं हमल छोड़ा था। आज बच्चियों से हम प्यार करते हैं, आज बच्चियां घरों के अंदर पैदा होती हैं। आप अल्लामा अंसार रजा साहब से, अल्लामा नसीर साहब से, अल्लामा मुख्तार साहब से पूछिए कि बच्ची पैदा हुई है तो यही कहेंगे तुम्हारे घर में अल्लाह ने रहमत भेज। बेशक, वाह वाह। बच्चियों की पैदाइश पर चेहरा नहीं बिगाड़ना चाहिए, बच्चियों की पैदाइश ये रब की रहमत है। जिस घर में बच्चियां पैदा होती हैं अल्लाह उस घर के 7 दरवाजे रिज़्क़ के खोल देता है और परवरदिगार आलम उस घर पर अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे आओ जरा देखो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करना शुरू किया, या रसूल अल्लाह मैंने अपनी बीवी के पेट में हमल छोड़ा था, मैं घर के बाहर निकला, कई सालों के बाद जब मैं वापस आया मैंने अपनी बीवी से कहा था अगर बच्ची पैदा हुई तो कत्ल कर देना, मार देना, अगर बच्चा पैदा होगा तो उसकी परवरिश करना, मैं लड़का देखना चाहता हूं, लड़की नहीं देखना चाहता हूं। आज भी हमारे मुआशरे में कुछ ऐसी बेगैरत माएं मौजूद हैं जो इस तरीके पर अपनी बहुओं को ताना दिया करती हैं कि लड़की नहीं होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, लड़का देना या लड़की देना ये रब का काम है, ये बंदे का कोई इसमें अमल दखल नहीं है। अल्लाह लड़का दे तब भी शुक्रिया अदा करो और अल्लाह लड़की दे तो और ज्यादा शुक्रिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप जरा देखो उस मुआशरे को देखो, उस नौजवान ने कहा, या रसूलल्लाह मैं अपनी बीवी से ये कह करके चला गया। कई साल के बाद जब मैं वापस आया तो मेरे आका, मैं दरवाजे पर पहुंचा, मैंने कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं इस घर का मालिक हूं। तब तक एक बच्ची ने दरवाजा खोला, बड़ी खूबसूरत बच्ची थी वो, उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी। दरवाजा खोल करके उसने कहा अगर आप इस घर के मालिक हैं तो मैं इस घर के मालिक की बेटी हूं। इतना कह करके उसने मेरे दामन को थाम लिया। अब्बू आप आ गए, इतना सुनना था, मैं गैज़ो गज़ब में बफर गया। मैंने कहा हट जा निगाहों के सामने से, मैं तुझे देखना नहीं चाहता हूं। दौड़ा गया मैं अपनी बीवी के पास, कहा ये कौन सी लड़की है जो मेरे दरवाजे पर खड़ी हुई है? बीवी ने दामन थाम करके रोते हुए कहा ये किसी और की नूरे नजर नहीं है, ये तुम्हारी नूरे नजर है, ये तुम्हारी लख्त जिगर है, ये तुम्हारा खून है। कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब बाप की मोहब्बत इसके दिल के अंदर पैदा होती थी तो चौखट पर आकर के ये बैठ जाती थी और कहती थी मेरे बाप कहाँ हो, मैं आपका इंतजार कर रही हूं। आज आप इतने इंतजार के बाद आए हो तो इसको अपनी निगाहों से जलील न करना, उसे अपनी निगाहों के सामने से हटाना नहीं। इतना कह करके
बीवी ने दामन थाम लिया, मेरा कुछ गुस्सा ठंडा हुआ। या रसूल अल्लाह, मैं मुआशरे का सरदार था, कबीले का सरदार था। जब मैं बाहर निकलता तो लोग ताना देते, ये देखो, जब दूसरे की बच्चियों की बारी थी तो इसने ले जाकर के अरब के रेगिस्तान में इसने उन बच्चियों को दफन कर दिया, और जब अपनी बेटी की बारी आई है तो अपनी बेटी को घर के अंदर रखे हुए है, अपनी बेटी को नहीं जमीन के अंदर दफन कर रहा है। अरे कब तू अपनी बेटी को निकालेगा? या रसूल अल्लाह, ये लोग ताना देते थे, मेरा रास्ते से गुजरना मुश्किल हो गया, रास्ते में चलना मुश्किल हो गया। कई बार लोग ताना देते थे, मेरी आंख में गैज़ो गज़ब के गुस्से की वजह से मेरे आंखों से शरारे निकलना शुरू हो जाते थे, और गैज़ो गज़ब के आलम में मैं भर जाता था। घर आता, बीवी समझाती तो गुस्सा ठंडा हो जाता। एक दिन क्या हुआ कि मैं घर से बाहर निकला था, तब तक मेरे एक पड़ोसी ने ताना दे दिया। मैं घर आया, मैंने अपनी बेटी को अपने कांधे पर उठाया, हाथ में फावड़ा लिया और हाथ में रस्सी लेकर के अरब के उसी रेगिस्तान में पहुंच गया, जहां पर मैंने 10 नहीं, 5 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 70 बच्चियों को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ा था। वहीं पर मैं पहुंच गया। पहुंचने के बाद मैंने अपनी बेटी को ले जाकर के एक पत्थर पर बिठा दिया। या रसूल अल्लाह, उस दिन मेरी बेटी इतना खुश थी, इतना खुश थी कि जब मैंने उसको अपने कांधे पर बिठाया था तो उस बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा था, अब्बू, आज ने आपने हमको कांधे पर नहीं बिठाया है, आज आपने कांधे पर बिठा करके आपने हमें आसमान पर बिठा दिया है। आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अब्बू, आज हमें नानी के यहाँ लेकर के जा रहे हो, आप हमारे लिए खिलौना दिलाने के लिए जा रहे हो, हमारे लिए कपड़ों का इंतजाम करने के लिए जा रहे हो। बच्ची बार बार कहती, मगर या रसूल अल्लाह, मैं उसके किसी बात पर तवज्जो न देता। मैंने ले जाकर के उसे पत्थर पर बिठा दिया और अपने हाथ से मैंने जमीन कुरेदना शुरू कर दिया, जमीन खोदना शुरू कर दिया। फावड़े से मैं जमीन खोद रहा था। बार बार मेरी बच्ची मुझसे कहती थी, अब्बू, आप ये किसके लिए कर रहे हो? आप ये किसके लिए गड्ढा खोद रहे हो? ये तपती हुई धूप है, ये चिलचिलाती हुई धूप है, और इस चिलचिलाती धूप में आप गड्ढा किस लिए खोद रहे हो? किसके लिए पानी जमा करना है? क्यों आप ये गड्ढा खोद रहे हो? या रसूल अल्लाह, ये बार बार मेरी बेटी मेरी तरफ तवज्जो देती। या रसूल अल्लाह, मैं गड्ढा खोदते खोदते मुझे प्यास लगी, मेरे होंठ खुश्क हो गए, और चिलचिलाती हुई धूप में प्यास की शिद्दत जब मैं बर्दाश्त न कर सका तो मेरी बेटी पत्थर से उठी और उसने बाहर से ले जा करके एक घर से पानी ला करके एक प्याला पानी मेरे हाथ में दिया और कहा, अब्बू, आप इसे पी लीजिए। इतना कह करके वो सहाबी, अभी इस्लाम दामने इस्लाम में दाखिला नहीं लिया है, उन्होंने बारगाहे रिसालत में रोना शुरू कर देते हैं, आंखें रुधिया जाती हैं, सावन भादों की तरह आंसू बरसने लगते हैं। नबी कौनैन की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी ने कहा, अब्बू, पानी पी लीजिए। मैंने पानी लिया, प्यास बुझाई, होंठ से प्यास खुश्क, होंठ की खुश्की खत्म हो गई। मैंने जब गड्ढा तैयार कर लिया और गड्ढा तैयार करने के बाद जब मुकम्मल तौर से मैंने गड्ढा तैयार कर लिया तो मैंने अपनी बेटी को बुलाया। जब मैं अपनी बेटी को बुलाया तो या रसूल अल्लाह, वो बेटी दौड़ती हुई आई। वो सोच रही थी कि मेरा बाप मुझे सीने से लगा लेगा, मेरा बाप मुझे गले से लगा लेगा, मेरा बाप मुझे आसमानों की तरफ उछाल करके प्यार करेगा, मेरा बाप मेरे रुखसार का बोसा लेगा। या रसूल अल्लाह, जैसे ही वो मेरी बेटी मेरे करीब आई, गैज़ो गज़ब के आलम में उन्हीं तसव्वुरात को मैंने अपने ज़हन फिक्र में दाखिल कर लिया और मैंने सोच लिया, जब मैं 70 बच्चियों को इसी जमीन पर मैंने दफन किया था, या रसूल अल्लाह, मैंने फौरन एक लात मारा अपनी बेटी के पुश्त पर, और जैसे ही लात मारा और वो बच्ची उसी गड्ढे के अंदर गिर गई, तब तक उसने कहा, अब्बू, आप ये क्या कर रहे हो? अरे अब्बू जान, आप ये क्या कर रहे हो? मैं तो आपसे बहुत प्यार कर रही हूँ, मैं आपसे बड़ी उल्फत कर रही हूँ, मुझे जिंदा रहने का हक दिया जाए। मैंने आपसे कभी किसी चीज का मुतालबा नहीं किया है, मुझे तो जिंदा रहने का हक है। अब्बू, आप मुझे क्यों मार रहे हो? या रसूल अल्लाह, मेरे हाथ में जो कुछ मिला मैं फेंकता गया, मिट्टी मिली फेंकता गया, लकड़ी मिली फेंकता गया, पत्थर मिला फेंकता गया, मैं उस बच्ची के ऊपर फेंकता गया। मट्टी जब उसके जिस्म के ऊपर आने लगी और मिट्टी जब उसके सीने तक पहुंची
اور جسم کی حرارت جب ختم ہونے لگی اور جسم کی حرکت جب جواب دینے لگی تو اس میری بیٹی نے یا رسول اللہ کسی اور کو یاد نہیں کیا تھا، اس نے آپ کو یاد کیا تھا۔ تب تک نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہیں بھیگ گئیں۔ آقا فرماتے ہیں اس نے مجھ محمد کو یاد کیا تھا؟ ہاں بتاؤ تو صحیح اس نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ جیسے ہی اس کے سینے تک مٹی پہنچی اور اس کے جسم کی حرکت جواب دینے لگی تب تک اس میری بیٹی نے اپنی قوت کو جمع کیا اور اس نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے عرض کیا ہے میرے مولا میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک حبیب آنے والا ہے، تیرا ایک محبوب آنے والا ہے، تیرا ایک نبی آنے والا ہے، تیرا ایک آخری پیغمبر آنے والا ہے۔ اے اللہ کب بھیجے گا تو اس نبی کو؟ بھیج دے اس نبی کو تاکہ بچیاں آنگنوں میں کھیلنا شروع کر دیں، تاکہ بچیوں کو پیار کیا جانے لگے۔ اے اللہ کے پیارے رسول، اے اللہ کے پیارے رسول وہ آپ کو یاد کر رہی تھی۔ یا رسول اللہ اس نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا تھا، تب تک مصطفیٰ جان رحمت رونے لگے، صحابہ کی مقدس نگاہیں بھیگ گئی۔ نبی کونین کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا سنو سنو آج کے بعد بچیوں کو زندہ زمین کے اندر گالا نہیں جائے گا۔ جو بچیوں سے پیار کرے گا، جو بچیوں کو صحیح تعلیم دے گا، جو بچیوں کو صحیح تربیت دے گا، جو بچیوں کو عمل صالح کا پیغام دے گا، جو بچیوں کو اعلیٰ کردار دے گا، جو بچیوں کو شاندار کیریکٹر دے گا، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ باپ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی۔ زندہ باد زندہ باد، واہ